I wanna जोड़ verb. The word wanna is incorrect grammatically. It is equivalent to want to. When combined with the word I, it helps communicate something you want to do. Here are some examples. यहाँ कुछ उदाहरण है. I wanna talk. मैं बात करना चाहता हूँ. I wanna search for a job. मैं नौकरी के लिए खोज करना चाहते हैं. I wanna order some food. मैं खाने का ऑर्डर करना चाहता हूँ. I wanna marry her. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. I wanna listen to that song. मैं वह गाना सुनना चाहता हूँ. By adding the word don't, you can change the meaning of what you are saying to something you want to do to something you do not want to do. Here are some examples. यहाँ कुछ उदाहरण है. I don't wanna talk. मैं बात नहीं करना चाहता हूँ. I don't wanna search for a job. मैं नौकरी के लिए खोज नहीं करना चाहता हूँ. I don't wanna marry her. मैं उससे शादी नहीं करना चाहता. I don't wanna listen to that song. मैं वह गाना नहीं सुनना चाहता. I don't wanna order some food. मैं खाने का ऑर्डर नहीं करना चाहता हूँ. Past perfect continuous tense. To the uneducated, an A is just three sticks. एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए एक का मतलब बस तीन लंगड़े हैं. वह सुबह से कार की मरम्मत कर रहा था. He had been repairing the car since morning. सुधा पिछले कई दिनों से नृत्य का रियाज नहीं कर रही थी. Sudha had not been practicing dance for the last many days. सुरेश पिछले 2 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था. Suresh had been working in the same company for the last 2 years. क्या वर्तिका सुबह से रो रही थी? Had Vartika been weeping since morning? क्या रमेश तुम्हारे फोन का कल से इंतजार कर रहा था? Had Ramesh been waiting for your phone since yesterday? बच्चे कल शाम से नहीं पढ़ रहे थे. Children had not been studying since yesterday evening. अव्यन 1 घंटे से गिगल बेलीज की राइम्स देख रहा था. अव्यन had been watching rhymes of Giggle Bellies for an hour. क्या कनिका बचपन से क्लासिकल डांस सीख रही थी? Had Kanika been learning classical dance since childhood? क्या पापाजी 3 बजे से मैच नहीं देख रहे थे? Had Papaji not been watching match since 3 o'clock? काफी समय से हम तुम्हारे व्यवहार का निरीक्षण कर रहे थे. We had been observing your behavior for a long time. पिताजी की जॉब की वजह से हम 10 सालों से पटना में ही रह रहे थे. We had been living in Patna for 10 years because of Papaji's job. हम सुबह से मम्मी जी के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे थे. We had been preparing for a surprise party for Mammy जी since morning. रमेश कल से मुझे अपने साथ आगरा जाने के लिए जिद कर रहा था. Ramesh had been insisting me to go with him to Agra since yesterday. मकर संक्रांति के दिन वर्तिका और कनिका सुबह से पतंग उड़ा रही थी. Vartika and Kanika had been flying kites since morning on the day of Makar Sankranti. पिछले साल जब मैं अपनी बहन के घर पहुंचा, वह श्रीखंड बना रही थी. Last year when I reached my sister's home, she was making shikhand, a sweet recipe. बरसात आने से पहले हमने मकान शिफ्ट कर लिया था. We had shifted our home before it rained. कोर्ट में उपस्थित होने से पहले वह बहुत खुश था. He was very happy before he appeared in court. प्रिंस के राजा बनने से पहले सेना ने विद्रोह कर दिया था. Army had revolted before Prince became king. मंजुला के उठने से पहले पूनम नाश्ता बना चुकी थी. पूनम had prepared breakfast before Manjula awoke. मेरा नंबर आने से पहले वह सारी चॉकलेट बांट चुकी थी. She had distributed all the chocolates before my number came. जब रमेश आया, अव्यन सो रहा था. अव्यन was sleeping when Ramesh came. पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग गए. Thieves ran away before police reached there. पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले CNG की कीमत बढ़ गई. Price of CNG increased before petrol price hiked. जब डायरेक्टर मीटिंग में पहुंचे, लोग वीडियो गेम खेल रहे थे. People were playing video game when directors reached in the meeting. कल सुबह 5 बजे मैं मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर के लिए जा रहा था और वह उस समय अपने ऑफिस जा रही थी. I was going for a walk yesterday at 5 o'clock in the morning and she was going to her office at that time. अब मेरे लिए इतनी जल्दी ऑफिस जाना बहुत मुश्किल है. Now it is very difficult for me to go to office so early. सुबह की शिफ्ट के लिए लोगों को घर से जल्दी निकलना पड़ता है. People have to leave their homes early for morning shift. ये सर्दियों में बहुत मुश्किल है. It is very difficult during winter. मुझे याद है जब मुझे सर्दियों में सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता था. I remember when I was to go to office early in the morning during winters. मेरे पास केवल स्कूटर था. I had only scooter.
ऑफिस जाने से पहले मैं अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक लेता था। बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस आई यूज्ड टू पैक माई सेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्कूटर चलाते वक्त ठंडी हवा सीधे बदन से टकराती है। While driving scooter, cold waves directly hit the body. हाथ और मुंह कुछ समय के लिए एकदम सुन्न हो जाते हैं। Hands and face used to become senseless for a while. मेरे ऑफिस में सुरक्षा कारणों के कारण हीटर भी नहीं था। My office building was also not having heaters because of safety reasons. उस समय चाय भी नहीं मिलती थी। Tea was also not available at that time. और ड्यूटी रेलवे वैगन्स खाली करने का निरीक्षण करने की थी और मुझे बाहर खुले में रहना पड़ता था। Moreover, the duty was to monitor decantation of railway wagons and I had to remain in open field. सर्दियों में कभी कभी ठंडी हवाएं इतनी ठंडी होती है कि खुले में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। During winter, sometimes cold waves are very cold and it becomes very difficult to work in open. उस सर्दी में कर्मचारियों को हॉस पाइप एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचने का शारीरिक काम करना पड़ता था। Workers had to perform physical job of dragging big hose pipes from one end to another during that winter. मैंने देखा कि कर्मचारी काम करते वक्त जोर जोर से हंसा और शोर मचाया करते थे। I noticed that the workers used to laugh loudly and make lot of noises while working. बाद में मुझे मालूम हुआ कि जोर से हंसना और शोर मचाना उन्हें ताकत इकट्ठी करने में मदद करता है। Later I came to know that laughing loudly and making noise helped them to gather strength. हर कोई चाय का, खास तौर पर सर्दियों में, बेसब्री से इंतजार किया करता था। Everybody used to wait anxiously for hot tea, particularly during winter days. वह कार्य बहुत कठिन था परंतु उसने मुझे शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया। That assignment was very tough but it made me physically strong. कठिन समय शुरू में या अपने पूरे दौर में काफी कठिन लगता है परंतु यह आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाकर इनाम देता है। Tough time initially or throughout its phase feels very tough but it rewards by increasing your mental and physical strengths. यह अच्छा है कि कठिन समय को भी खुशी से जिया जाए क्योंकि यह हमेशा नहीं रहने वाला है। It is better to enjoy tough time also as it is not going to remain forever. मुझे इसके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखना है। I am going to write about this in my autobiography. जिंदगी एक खुला स्कूल है। Life is an open school. हमें अपने आप सीखना है। We are to learn ourselves. माता पिता और सच्चे शुभचिंतकों के अलावा हमारी जिंदगी में सीखने के महत्वपूर्ण पहलुओं, बातों को बताने वाला कोई नहीं है। There is none except parents and real well wishes to highlight important aspects to learn in our life. वहाँ हमारी सीख जो सीख चुके को जांचने वाला कोई टीचर नहीं है। There are no teachers to assess our learning. केवल समय और हमारा व्यक्तित्व बताता है कि हमने जिंदगी के खुले स्कूल में क्या सीखा। Only time and our personality tell what we have learnt in the open school of life. तुम्हारे भविष्य का व्यक्तित्व तुम्हारी जिंदगी के स्कूल में सीखने की क्षमता से खड़ा, आकृतिक शेप लेना जाता है। Your future personality is shaped by your learning capability in the life school. सच्चाई है कि आम आदमी लगभग सब कुछ गंवाने के बाद इसके बारे में एहसास करता है। The fact is that common people realize about this after losing almost everything. जिंदगी के स्कूल में अच्छा स्टूडेंट होना सलाह योग्य है। It is advisable to be a good student in the school of life. अगस्त त्योहारों का महीना है। August is a month of festivals. रक्षा बंधन भाई और बहन का त्योहार है। रक्षा बंधन as a festival of brother or sister. बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। Sisters tie राखी on the hands of their brothers. भाई बदले में अपनी बहनों को उपहार देते हैं। Brothers in return give gifts to their sisters. सरकार भी रक्षाबंधन के दिन लेडीज के लिए बसों में मुफ्त सफर की इजाजत देती है। Government also allows free travel in buses for ladies on the day of Raksha Bandhan. मुझे त्योहार पसंद है। I love festivals. त्योहार परिवारों को जोड़े रखते हैं। Festivals keep families united. Fruits name फलों के नाम। Fig, अंजीर, गुआवा, अमरूद, लिची, लीची, lemon, नींबू, मैंगो, आम। Antonyms and synonyms विलोम और समानार्थक। बुराई बुरा। Exactly precisely. बिल्कुल सही संक्षेप में। Except apart from. सिवाय अलग से है। Exit leave. बाहर निकले छोड़ दो। Extra additional. Extra upper. Vegetable name सब्जियों के नाम। Bitter gourd, करेला, coriander, धनिया, cucumber, खीरा,
गार्लिक, लहसुन, जैकफ्रूट, कटहल, स्पाइस यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, स्पाइस बर्तन अनाज, हल्दी, टर्मरिक, सिरका, विनेगर, गेहूं, वीट, गेहूं का आटा, वीट फ्लावर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द, आस्क, पूछ, असिस्ट, सहायता, एड, पर, अटेंड, हाजिरी देना, अगस्त, अगस्त, आंट, बुआ चाची मौसी मामी काकी, आंट, बुआ चाची मौसी मामी काकी, मोस्ट कॉमन फ्रेजेस एल, लेट मी चेक, मैं जांच करता हूं, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दे, लेट्स गो हैव अ लुक, चलो एक नजर है चलते हैं, लेट्स गो, चलिए चलते हैं, लेट्स मीट इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के सामने मिलते हैं, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश, अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं, लेट्स शेयर, चलो बातें, मोस्ट कॉमन वर्ड्स, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, लैक, कमी, लेक, झील, लैंप, दिया, लैंग्वेज, भाषा, लैपटॉप, लैपटॉप, लार्ज, बड़ा, लास्ट, आखिरी, लेट, देर से, लेटर, बाद में, लाफ, हंस, लॉन्ड्रोमैट, लॉन्ड्रोमेट, लॉ, कानून, लॉयर, वकील, ले, लेट, लेजी, आलसी, लर्न, सीख, लेदर, जमा, लीव, छोड़, लेफ्ट, छोड़ दिया, लेग, टांग, लेंड, उधार देना, लेस, कम, लेट, होने देना, लेटर, चिट्ठी, पत्र, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, लाइसेंस, लाइसेंस, लाई, झूठ, लाई, लेट, लाई, लेट, लाइफ, जिंदगी, लाइट, रोशनी, लाइट, उजाला, लाइट, प्रकाश, लाइक, पसंद आना, लिसन, सुन, लीटर, लिटर, लिटिल, छोटा, लिटिल, थोड़ा, लाइव, जी, लॉक, ताला, लॉन्ग, लंबा, लुक, देख, लूज, खो, लॉस्ट, खो दिया, लोशन, लोशन,